Hello everyone. So welcome back to Science Study Center and Young's Mind Academy. I am Anjali Malviya, and in today's lecture we are going to talk about the transportation in plants. Okay, in the previous lecture we have seen the transportation in the humans. We have seen the structure of the heart and how the blood circulates from heart to the body parts and from the body parts to the heart, to the vessels and the arteries. So today we are going to talk about the transportation in plants. Transportation in plants. So this happens through two types of, you can say, as in the humans we have the arteries and the veins, the blood capillaries, right, the blood vessels. So we have the arteries, veins and the capillaries, and the same way in the plants we have the xylem and the phloem. So first one is the xylem, the second one, okay, and you have seen in your previous classes about, you have studied about the xylem and the phloem. So xylem, it transports the water, right? Xylem transports water and minerals, okay, whereas in the phloem it transports your food. There are two types of transportation in plants, xylem, phloem. One is transport water and minerals, another transports the food. Now one by one we will see both the things. So first we will talk about the xylem. Now this further divides into two types, or you can say two ways, two processes, okay. So the first one is your transpiration, and the second one is your root pressure, okay. Now in the transpiration process, you all know the definition, it's the loss of water, and how this happened I am going to show you so that it will be easier for you to remember. Now what happened, just I am taking example of a tree, okay. So this is your tree, and as you all know that plants are made up of cells, right. So these trees, this also have certain cells, they are made up of cells. They are not so big, I am just giving you some example. These are your cells, right, by which a plant is made up of. Now what happens in the process of transpiration, the water molecules shifting, the shifting of water molecules happens, okay. So here is a water molecule, and why I am taking from here, because it is connected with the root, and root have water molecules, right. So the first cell have the water molecules, and from where it got the water, from its root, okay. Now what happens, यहाँ से ये water molecule यहाँ पे shift होता जाएगा, from each and every cell it shifts, okay. फिर यहाँ से यहाँ, and this is how shifting of water molecules take place. And now in the last, this is the last one, this is your last cell, okay. Now यहाँ से कहाँ जाएगा water molecule, it will come here, right, and this is known as your transpiration. This is your transpiration, the shifting of water molecules which causing the loss of water molecules, right. So this is your
transpiration. Now coming to your root pressure, coming to the root pressure, what is root pressure? I'm just making a small example by which you can easily understand. This is the soil, okay, this is your soil and this is your root, and you all know that the soil and the root has the water and the mineral compound. They both have water and they both have minerals. So water plus minerals, soil also have the water and minerals, root also have water plus your minerals. Okay, now what happened in the root pressure कि ये जो रूट है यहाँ पे कुछ ATP यूज़ करते हैं. ये जो रूट है आपके यहाँ पे, ये रूट जो है ये कुछ ATP यूज़ करते हैं. What is the ATP? ATP is a form of energy, is the currency of energy you can say. तो रूट क्या करते हैं, अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं और सॉइल से कुछ आयंस अब्जॉर्ब करते हैं. रूट अपनी एनर्जी खर्च करते हैं और उस एनर्जी खर्च करने से क्या करेंगे, वो सॉइल से कुछ आयंस अब्जॉर्ब करेंगे. और आयंस क्या होते हैं, सॉइल के पास क्या है, वाटर और मिनरल. तो आयंस क्या है आपके, मिनरल्स. दैट मीन्स रूट क्या करेगा, सॉइल से मिनरल अब्जॉर्ब करेगा. सो दिस इज द स्टेप नंबर 1. आई हैव मेड इट इन द सिंपल स्टेप so that it will be easier for you to remember. So I am writing it here. Step 1. What is step 1? Step 1 is your key root absorb ions from soil. ठीक है, चलो रूट ने अब्जॉर्ब कर लिया. अब जस्ट यूज योर कॉमन सेंस कि अगर रूट मिनरल्स अब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से तो क्या हो जाएगा, रूट में मिनरल्स ज़्यादा हो जाएंगे, राइट. उनका रेशियो जो है वाटर और मिनरल का वो बिगड़ जाएगा क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल तो वैसे ही रहेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनरल्स हो गए ज़्यादा क्योंकि उसने सॉइल से अब्जॉर्ब कर लिया. नाउ ये जो रेशियो बिगड़ गया है सॉइल वाटर और मिनरल का, अब क्या होगा कि ये जो रूट में मिनरल्स ज़्यादा हो गए हैं, अब क्या होगा कि सॉइल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रूट को देगा कि तुम मिनरल्स ले गए मेरा अपनी एटीपी खर्च करके, तो चलो पानी भी ले जाओ. ये वाटर मॉलिक्यूल देगा थ्रू द प्रोसेस नोन एज दी ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सॉइल क्या करेगा, अब वाटर को भी रूट को दे देगा कि चलो तुम मिनरल्स ले गए हो, वाटर को भी ले जाओ. तो शिफ्टिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इससे क्या होगा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो जाएंगे. ठीक, सी रूट ने अपनी एनर्जी खर्च करके मिनरल्स लिया, अपनी एटीपी को यूज़ करके आयंस लिए, मिनरल्स लिए. अब क्या करेगा सॉइल, जब देखेगा कि तुम मिनरल्स तो ले गए हो, मेरे पास जो वाटर है उसको भी ले जाओ, और वो प्रोसेस क्या होगा, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस, ओके. सो द सेकेंड step second will be your osmosis. Okay, so this is all about the transportation in plants from xylem. Okay, the transpiration, then the root pressure. Take a screenshot. Okay, now transportation in plants, two types, xylem and the phloem. We have studied the xylem, now study the phloem. phloem. Now phloem क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड. और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होगा,
ग्रीन पार्ट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है. वी ऑल नो कि जो प्लांट्स अपना फूड बनाता है, दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड, राइट. और वो किस में होगा, ग्रीन पार्ट में होगा. ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन पार्ट से फूड ट्रांसफर होगा टू दी नॉन ग्रीन पार्ट, राइट. क्योंकि नॉन ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का, वहाँ तो फूड है नहीं, तो उसको क्या होना पड़ेगा, शिफ्ट ही होना पड़ेगा. तो दिस कैन बी मल्टी डायरेक्शनल, राइट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज मल्टी डायरेक्शनल. ये ग्रीन पार्ट है आपके प्लांट का, तो जितने नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं सब में होगा फूड ट्रांसफर, ठीक. सो दिस इज योर मल्टी डायरेक्शनल, वेयर एज in the xylem it's only the unidirectional. Why unidirectional? It's always the upward, right. The movement of water takes place in the upward direction only. From the root it brings the water and the minerals. That's what we have seen in the transpiration as well as in the root pressure, right. So in the xylem it's very important to just keep in your mind, in the xylem it's just the unidirectional, whereas in the phloem it's the multidirectional. Okay, yes. Now the transportation of food is also known as your translocation. Okay, तो इसमें क्या प्रोसेस है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसका प्रोसेस क्या है, translocation, right, by the process of translocation. Now just understand this by a simple example. Okay, I'm just making it just to make you understand, so you can also draw this in your notebook. Okay, yes. So now this is a plant. Okay, this is your phloem. Okay, and this is the green part. What I have said कि it's the transportation of food from the green to the non-green part. Now see how it's happened. The process of translocation कैसे होता है. तो ये क्या है, आपका green part है. Okay, this is your green part. और ये green part है तो इसके पास क्या है, food है. और ये क्या है, आपका non-green part है. This is your non-green part. This is your phloem. This is the green part. This is the non-green part. Now what happens कि जो green part है इसके पास food है in the form of the sucrose, right. This is very much clear to you कि ये क्या है, sucrose है, food है क्योंकि ये. Now what happens कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज हैपेंस. यहाँ पे क्या होगा, सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा. कहाँ होगा, कौन फूड कैरी करता है, योर फ्लोएम. दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड नियर बाय योर फ्लोएम. जो पास का फ्लोएम होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा ये जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है. सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1. नाउ क्या होगा, ये समझ लो ये नियर बाय फ्लोएम है. नाउ यहाँ पे सुक्रोज हो जाएगा, ठीक, इसने दिया. अब नाउ टेल मी, जब हमने जाइलम पढ़ा था तो उसमें क्या था कि रूट क्या कर रहा था, अपनी एटीपी खर्च कर रहा था, राइट. सॉइल से मांग रहा था आयंस दो हमें, मिनरल्स दो. वही चीज़ यहाँ पे हो रही है क्योंकि ग्रीन पार्ट से
फ्लोएम में जा रहा है सुक्रोज, तो यहाँ पे भी क्या खर्च होगा आपका एटीपी, क्योंकि एक्टिव हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, एक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एटीपी खर्च हो रही है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाय फ्लोएम। नाउ अब क्या होगा, ओके नाउ ये आपका फ्लोएम है और ये आपका जाइलम है, बाकी रेस्ट जो बाकी ये बचा है, ठीक है। अब इनके पास, जाइलम के पास क्या होगा, जाइलम के पास है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। जाइलम्स के पास यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर है, ठीक। ये क्या है आपका, जाइलम है, वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, शिफ्टिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द जाइलम टू द फ्लोएम। और ये भी किस प्रोसेस से होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ योर ऑस्मोसिस। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे बाय द प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। Osmosis. Okay, so just keep this in mind. This is step 2. This is step 1. ठीक, जाइलम, फ्लोएम, ये दो चीज़ों से हमारा प्लांट बना है। वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पे जाइलम के पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल की जाइलम से फ्लोएम में। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। यही हमने यहाँ पे देखा था, यस, यही हमने यहाँ पे देखा था। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यही चीज़ हो रही थी, वाटर मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग हो रही थी, और यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग हो रही है जाइलम से फ्लोएम में बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। स्टेप 2। अब क्या होगा, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 ये है कि सुक्रोज वाटर हो गया। अब क्या होगा, ये जाएगा नियर बाय नॉन ग्रीन प्लांट की तरफ। नॉन ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का, ये उसकी तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगा। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो स्टेप 3 इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है कि ये सुक्रोज और वाटर आपका नॉन ग्रीन पार्ट में जाएगा, क्योंकि उनके पास फूड है नहीं। ओके, सो दिस इज होल इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलोकेशन, हाउ द फ्लोएम वर्क्स। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, तो कैसे करता है। ओके, द फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन पार्ट है जहाँ पे सुक्रोज है, फोटोसिंथेसिस जो बना है, वो ट्रांसफ़र होगा आपके फ्लोएम में, नियर बाय फ्लोएम में, ठीक। अब क्या होगा, फ्लोएम जाइलम, ये दो चीज़ों से प्लांट बना है। जाइलम के पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोएम में जब देखा कि सुक्रोज ज़्यादा हो गया है, तो रेशियो गड़बड़ हो रहा है। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे शिफ्ट होगा जाइलम से सुक्रोज, जाइलम से आपके फ्लोएम में बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो स्टेप 2 इज योर ऑस्मोसिस। नाउ अब जब फ्लोएम में दोनों चीज़ें आ गई हैं, सुक्रोज भी वाटर भी, अब क्या होगा, अब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो मूव करेगा, ठीक, और वो नॉन ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स की तरफ जाएगा, जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है प्लांट का। ओके, सो दिस होल इज द प्रोसेस ऑफ योर translocation. You can make this diagram, it will be very easier for you to revise. Okay, so just take a screenshot. Okay, so we have completed the topic of the transportation. ठीक, we have completed the transportation in human
We have seen the chambers of the heart, how it works and everything. And then we have talked about the transportation in plants. Now the next topic is the excretion. Excretion in humans. Now ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसमें हमने डाइजेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, ओके, देन हमने पढ़ा ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, योर ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन. और एज आई हैव टोल्ड यू कि ये लाइफ प्रोसेस क्या है, ये सारे जो सिस्टम हैं ये एक साथ काम करते हैं, ओके. इससे क्या होगा, इसी से हम सर्वाइव करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक फंक्शन का अच्छे से परफॉर्म करना. दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, ओके. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज द excretion. Now the main organ which performs the excretion या excretory system का जो main organ है, that's your kidney. That's the kidney, okay. Now you will study in your higher classes कि जब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड पढ़ा था, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें ये भी होता है कि हार्ट से ब्लड जब बॉडी पार्ट्स में जाता है तो वो किडनी में भी जाता है. जो ब्लड है वो क्या किडनी में भी जाएगा. तो किडनी में जब ब्लड जाएगा तो वो किडनी क्या करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा. किडनी का काम क्या है, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड. किडनी का काम है प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, ओके. एंड जो वेस्ट मटेरियल होगा, प्योरीफाई हो गया ब्लड. जब ब्लड प्योरीफाई हो गया तो जो प्योरीफाइड ब्लड है, जो काम का ब्लड है, वो तो वापस चला जाएगा कैपिलरीज में, ठीक. बाकी बॉडी पार्ट में ले जाओ, ये ठीक है, ये ब्लड अच्छा है. और जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द यूरिनेशन इट विल एक्सेल आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक. दिस इज योर एक्सक्रीशन. तो किडनी जो ये प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है, ये कैसे करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ किडनी एंड हाउ इट वर्क्स. नाउ किडनी जो है, these purifies the blood. How they purify the blood? It's somewhat like this, a bean shaped structure. Wait. Yes, it was somewhat like this, a bean shaped structure. You have a pair of kidneys, and this particular part I am just taking a small part. These are made up of nephrons, okay. These are made up of nephrons, millions of nephrons. Our kidney have millions of nephrons, ठीक. तो ये जो नेफ्रॉन्स है, ये परफॉर्म करती है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. जो हो रहा है वो इन्हीं नेफ्रॉन्स की वजह से हो रहा है. सो यू कैन से दीज नेफ्रॉन्स आर दी VVIP, ओके. सो दीज नेफ्रॉन्स आर दी VVIP फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. सो दे विल डू ऑल द वर्क, दे विल डू द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ओके. तो नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ओके. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट to you with the help of a diagram. It will be easier for you to understand, okay. So nephrons में क्या है, nephrons के network like structure form करते हैं, okay.
your PCT, a tube like structure, then Henle's loop, a U shape structure. तो इससे क्या होगा, ये पाथवे है, आप समझ लो, ब्लड का ये पाथवे है, इसी पाथवे से ब्लड होके निकलता है, और इन्हीं पाथवे में हर एक जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्योरिफिकेशन का, ओके, फिल्ट्रेशन का, रीअब्जॉर्प्शन का, सीक्रीशन का, इस तरह से जो प्रोसेस है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड का, इट हैपेंस इन दी नेफ्रॉन्स, ठीक, and they form a network like structure by which it happens. So in the next lecture we will study about the nephrons in detail, okay. So yes, if you have any questions regarding the transportation plants, or in the previous lecture whatever we have studied, if you have any confusion, so do comment down below, okay. And yes, get ready with the next lecture because it's going to be very important. I am going to explain you about the nephrons in detail, each and everything, okay. And I'm going to make you write the key points as well, so that for the revision it will be very easier for you, okay. So till then, just take care, stay safe, stay home, okay. Thank you.